حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی نے ایک عجیب و غریب اور دردناک واقعہ کچھ اس طرح سنایا کہ میں ایک مرتبہ بیابان جنگل میں تھا، وہاں رات ہو گئی۔ میں اس بیابان جنگل میں کسی جگہ ٹھہرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی جگہ نہ ملی اور دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ میں اس جھوپڑی میں گیا اور وہاں جا کر میں نے آواز دی تو وہاں سے ایک نوجوان عورت اور بڑھیا باہر نکل کر آئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے یہاں رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے اور کیا رات کا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ کی مہمان نوازی کریں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے کہ جسے ہم ذبح کر سکیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا پھر تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تم یہاں کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا کہ بس اللہ عز و جل کا فضل ہے، وہ ہماری زندگی بسر کروا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور مسافر یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں دور کسی مقام پر ٹھہر گیا۔ جب رات ہوئی تو وہاں سے مجھے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی جو گدھے کی آواز لگ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میری جو نیند ہے وہ اڑ گئی، میری نیند ختم ہو گئی اور وہ میں نے رات جاگ کر گزاری، مجھے نیند نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو میں جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر تھا، دل دہلا دینے والا منظر تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک گدھا گردن تک زمین میں دفن تھا اور اس کے آس پاس سے مٹی وغیرہ ہٹ چکی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر واپس اس نوجوان عورت اور بڑھیا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ گدھے کی آواز کیسے تھی اور وہاں گدھا گردن تک دفن ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس بڑھیا عورت نے کہا کہ اگر تم اس کے بارے میں نہ پوچھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا آخر کیا ماجرا ہے۔ تو وہ نوجوان عورت کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ وہ گدھا جو تمہیں نظر آیا وہ اس بڑھیا کا بیٹا اور میرا شوہر تھا۔ وہ برے کام کرتا، اس کی ماں اسے منع کرتی کہ تم یہ برے کام نہ کرو، تو وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، بدسلوکی کرتا اور اس سے کہتا کہ کیا تو گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اور وہ نافرمان بیٹا اپنی ماں کی بات نہ مانتا۔ تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ جا تجھے اللہ تبارک و تعالی گدھے کی طرح بنا دے۔ جیسے ہی اس کی ماں نے یہ کہا کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر ہم نے اسے دفنا دیا۔ دفن کرنے کے بعد روزانہ رات کے وقت اسی طرح گدھے کی آوازیں آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے گدھے کی طرح بنا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ وہ نوجوان کہ جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، ماں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا، ماں کی نافرمانی کرتا تھا، جب اس کی ماں اسے کسی برے کام سے منع کرتی تو وہ بدتمیزی کیا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی نافرمانی کی سزا اسے دنیا میں کیا دی؟ اسے دنیا میں یہ سزا دی کہ اسے گدھے کی طرح بنا دیا۔
अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला। जो माँ बाप का नाफरमान होता है, माँ बाप के साथ नाजेबा कलमात वो अदा करता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उन्हें मार पीट करता है, उन्हें गालम गलोच करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में तो उसको उसके आमाल की सजा देगा, लेकिन कभी कभी दुनिया वालों के लिए इबरत के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया में भी सजा देता है कि ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें और अपने माँ बाप की नाफरमानी वाले कामों से खुद को बचाएं और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। अजीजानी गिरामी, माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, हम उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ल शानुहु ने सबसे पहले कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप के हुकूक का बयान फरमाया कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, उसने हम सबको पैदा किया और वालिदैन जो है हमारा इस दुनिया में आने का सबब बने हैं। अगर वालिदैन ना होते तो हम इस दुनिया में ना आते, तो वालिदैन इस दुनिया में आने का सबब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। फरमाया कि उनके साथ अच्छा सलूक करो और फरमाया कि अगर बुढ़ापे में कोई पहुंच जाए, वो दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए या उनमें से कोई एक बुढ़ापे में पहुंच जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ तक ना कहो। अजीजानी गिरामी देखें, उफ ये एक मामूली लफ्ज है, हम बाद में भी कह देते हैं कि उफ ये क्या हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को उफ कहने से भी मना फरमाया। जब उफ कहने से मना किया है तो उनको गालम गलोच करना, उनको मार पीट करना, उनको बुरा भला कहना, उनके साथ अच्छा सलूक ना करना, ये कैसे जायज हो सकता है? ये हरगिज जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने उफ कहने से भी मना किया। जब उफ कहना मना है तो ये सारे अफाल कैसे जायज हो सकते हैं? और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनहरहुमा, और ना ही उनको झिड़को। झिड़कने से भी अल्लाह ताला ने मना किया है। आज हमारी नौजवान वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके सामने गुस्से से बात करते हैं, उनको झिड़क देते हैं, वो बेचारे बूढ़े वालिदैन सहम जाते हैं और अपनी औलाद को कुछ नहीं कहते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। और अहदीस मुबारका में भी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बहुत हकूक बयान फरमाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। हदीस मुबारक में यहाँ तक आता है, एक सहाबी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं गर्मी की हालत में अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर तवाफ करवाऊं, उनको उम्रा करवाऊं, उनको हज अदा करवाऊं, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू उनके हक अदा करने की बात कर रहा है, ये तो उस झटके के दर्द का एक हिस्सा भी नहीं है कि जो उसने तुझे पैदा होते वक्त सहा था। यानी जब बच्चा पैदा होता है, जो माँ को दर्द होता है, फरमाया कि उस दर्द का एक हिस्सा भी नहीं है, तुम उसके हक अदा करने की बात करते हो। हम वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया माँ का। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर फरमाया माँ का। तीसरी मर्तबा फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ का हक तुझ पर सबसे ज्यादा है।
फिर चौथी मर्तबा पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे बाप का। और एक और हदीस मुबारका का खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की रजा में, खुशनुदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे राजी हो, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो फरमाया कि वालिदैन को खुश करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी खुशनुदी वाले काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाएगा। और अजीजाने गिरामी, वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, वालिदैन की दुआएं हर वक्त लेना चाहिए, वालिदैन की बद्दुआ से बचना चाहिए। हदीस मुबारका का खुलासा है कि अगर वालिदैन अपनी औलाद के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। तो इसी तरह अगर वालिदैन बद्दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए हमें अपने वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, उनसे बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जब भी कोई अहम काम करे, कोई रुकावट आ जाए तो वालिदैन के सामने हाजिर होकर उनसे दुआएं लें, उनके सामने अपनी इल्तिजा पेश करें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला हमारे काम आसान कर देगा। हम दूसरों से दुआ के लिए कहते हैं, हम पीर साहब से, आलिम साहब से दुआ के लिए कहते हैं, अच्छी बात है, कहनी चाहिए, लेकिन घर में जो हमारे वालिदैन हैं हम उनसे दुआ के लिए नहीं कहते, उनसे भी हमें दुआ के लिए कहना चाहिए। जैसा कि फरमाया गया कि अगर वालिदैन दुआ कर दें तो अल्लाह ताला औलाद के लिए दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो हमें वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ बदतमीजी वाले काम नहीं करने चाहिए, उनकी जरूरियात का हमें ख्याल करना चाहिए। आज नफ्सा नफ्सी का आलम है, वालिदैन की जरूरियात को इंसान पूरा नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों में लगा हुआ है, वालिदैन को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। वो वालिदैन के जिन्होंने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, जवान किया होता है, पढ़ना सिखाया होता है, चलना सिखाया होता है, लेकिन वालिदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाए, औलाद बड़ी हो जाए तो वो वालिदैन को छोड़ देते हैं। और बाज बदनसीब ऐसे होते हैं कि जो वालिदैन को ओल्ड हाउस में पहुंचा देते हैं और उनको कोई फिक्र नहीं होती कि हमारे वालिदैन कैसी जिंदगी गुजर कर रहे हैं, कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, हमें अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन की जैसी नेमत हमें दी है तो हमें आज उसकी कदर करनी चाहिए। अगर वालिदैन में से कोई एक भी इस दुनिया से चला गया तो हम बाद में पछताते रहेंगे, हम पछतावा करेंगे कि काश हमारे वालिदैन होते, हम उनकी खिदमत कर लेते। उनकी खिदमत करना ये हम पर लाजिम और जरूरी है, उनकी जरूरियात को पूरा करना, उनका दवाई दारू का इंतजाम करना, ये हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। वालिदैन जब जिंदा हो तो औलाद उनको कुछ नहीं देती, खाने पीने के लिए नहीं देती, फल फ्रूट वगैरह नहीं दिलवा कर देते, लेकिन जैसे ही वालिदैन फौत होते हैं फिर लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा फ्रूट लेकर आ जाते हैं, खत्म वगैरह दिलवाते हैं। ये अच्छी बात है, खत्म दिलवाना चाहिए, लेकिन अगर वो जिंदा है तो जिंदगी में भी उनको फल फ्रूट खिलाएं, उनको अच्छा खाना खिलाएं, ताकि उनका दिल खुश हो और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की दुआएं लेने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, उनकी नाराजगी वाले कामों से हमें बचाए, उनके साथ अच्छा सलूक करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।